Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 9. I hope you and your family will be fine in this pandemic situation. So I just requested to you stay home and stay safe. Don't go unnecessary outside your homes. Also avoid to go into the crowded places. And if it should be necessary, you have to go outside your homes. Use properly face mask, cover, take sanitizers with you. Always be wash your hand at a specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. The students, today we are discussing about the new chapter of your syllabus, that is chapter number 13, why do we fall ill? Okay, this chapter that we have to discussing on this form. So before we discussing this chapter, first of all, health is one of the most common words that the people across the world that should be day-to-day life they have to be interacted. We often use the word health whenever we meet our friends, relatives, or maybe someone else. So we generally ask a basic priority ki how was your health, how you are fine or not. So basically we are discussing about their health structures. The first thing that the people ask when they meet someone else, that ask being their health in the form of a good health. So the good health, it means the physical, mental and social well-being. If any person is to be a healthy person, it means it should be healthy through the mentally, physically and socially, that should be well-being. Then we can be saying it should be a healthy person. So human beings generally live into the societies, and our social environment that plays a very important role to deciding the individual health. अगर देखा आप किस एरिया में रहते हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्थ के स्ट्रक्चर में. सो वी लिव आइदर इन विलेजेस, टाउन्स और मे बी इन द सिटीज. इन सच प्लेसेस आवर फिजिकल एनवायरनमेंट डिसाइडेड बाय द सोशल एनवायरनमेंट. हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट थिंक what will happen if none of the agencies that take responsibility to collecting the garbage from our areas, अगर वो गार्बेज को लेके नहीं जाएंगे, कोई एजेंसीज उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं कैरी करेगा, तो क्या सिचुएशन जनरेट होगा. अंडर दिस सिचुएशन और अंडर दिस केसेस डिजीज जनरली मे बी स्प्रेड टू आवर फिजिकल हेल्थ और इट मे बी ऑल्सो इंक्रीज थ्रू द सॉइल. So it means cleanliness of the physical environment that becomes quite necessary for the good health. So physical environment as well as the social environment that plays a very supplementary role to deciding the physical health of the individual persons. So for maintaining the physical health, अगर हमें physical health को maintain करना है, so our to consume the healthy and the balanced diet. अगर हमें अपने हेल्थ को प्रॉपरली रखना है, हेल्थ को बैलेंस रखना है, तो इट मीन्स वी हैव टू बी कंज्यूम तो प्रॉपरली अ बैलेंस्ड एंड अ कंज्यूम अ हेल्दी डाइट. सो इन अ डेली लाइफ अ पर्सन शुड रिमेन हैप्पी, एनर्जेटिक एंड एक्टिव. देन इट शुड बी अ गुड हेल्थ. ही शुड possesses not only फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो बी मेंटली वेल बीइंग. फिजिकली नहीं लेकिन वो मेंटली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए फॉर हिज पर्सनल लाइफ. उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, द रिलेशनशिप अमंग्स द सोसाइटी, वो सब बैलेंस्ड होनी चाहिए. देन इट शुड बी अ गुड. ऑल दिस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ अ पर्सन हैज अ गुड जॉब और मे बी अदर गुड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड मे बी अ सोशली एक्सेप्टेबल इन अ नेचर. देन इट शुड बी अ गुड हेल्थ. So individual health and the social health and economically stability that very plays a vital role to making a good health. So what is the meaning of healthy and disease free? अगर हमें implementation करना है कि healthy और disease free के बीच में क्या differentiation है, वो कैसे हम bifurcate कर सकते हैं, how we can be bifurcate healthy and disease free. So being healthy means what? बैलेंस इन अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ. अगर हेल्दी किसी भी पर्सन को आप हेल्दी कहेंगे, इसका मतलब क्या कि वो सोशली, फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. बट बीइंग अ डिजीज फ्री मीन्स क्या? डिजीज फ्री मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर. डिजीज फ्री का मतलब क्या कि मेंटली और फिजिकली
वो किसी भी डिजीज के थ्रू वो फ्री है। अ पर्सन मे बी डिजीज फ्री बट स्टिल नॉट हेल्दी। अगर पर्सन को किसी भी तरह का डिजीज नहीं फिर भी आप उसको हेल्दी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चलिए उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। इवन इफ अ डांसर डज नॉट हैव एनी डिजीज, डांसर को किसी भी तरह का डिजीज नहीं है, एंड if could not be stretch his body properly, so without any difficulty, so it cannot be said it's a healthy। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए बगैर भी अपने बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं कर पा रही, इसका मतलब कि वो हेल्दी नहीं है। चलो दूसरा एग्जाम्पल है, लाइक म्यूजिशियन का होता है कि इंपॉर्टेंट कि सफर्स फ्रॉम ब्रीथिंग फ्रॉम द सिंगिंग कैपेसिटी। उसका जो ब्रीथिंग कैपेसिटी होता है उसको सिंगिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो वो भी किसी भी तरह का वर्क को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। सो बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री जो है वो दो डिफरेंट थिंग्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। कि बीइंग हेल्दी का मतलब कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वो ठीक होना चाहिए। हेल्दी पर्सन जो होता है वो डिजीज फ्री होता है। हेल्दी पर्सन एनर्जेटिक होता है और एबल टू परफॉर्म एनी वर्क एब्सोल्युटली वेरी करेक्टली। जबकि डिजीज फ्री का मतलब होता है, डिजीज फ्री मतलब मीन्स कि नॉट हैविंग एनी फिजिकल और मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल और फिजिकल इलनेस नहीं है ना, आप उसको डिजीज फ्री कहेंगे। डिजीज फ्री पर्सन मे और नॉट बी अ हेल्दी, हेल्दी नहीं भी हो सकता है। परफॉर्म्स लाइक अ डिजीज फ्री, कोई भी एक पर्सन है लाइक अ डिजीज फ्री एंड डिपेंड अपॉन हिज सराउंडिंग एज वेल एज द फिजिकल एटीट्यूड। अगर वो प्रॉपरली नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहा है देन इट इज नॉट बी अ हेल्दी पर्सन। सो अभी हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिजीज फ्री हमें रहना है तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड बैलेंस डाइट। एक प्रॉपरली फूड और बैलेंस डाइट हमें मिले। उसके साथ साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें चाहिए, गुड शेल्टर चाहिए, गुड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सोशली हार्मोनी चाहिए। दिस आर द कॉन्सेप्ट विच शुड बी मेकिंग अ डिजीज फ्री। तो डिफेक्शन जो होता है, ये डिजीज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाउ द डिजीज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए, इफ उसमें दो चीजें, डिटेक्शन ऑफ डिसीज बाय एन इंडिविजुअल पर्सन से, या फिर आप फिजिकली डॉक्टर के पास जाके वो कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सो इफ एन इंडिविजुअल फील्स और मे बी एक्सपीरियंस दैट हीज one or more body that functions are not been regular, or maybe if finds to some symptoms which are generally not seen under the normal circumstances, then some disease may be present. It should be a first characteristics. So due to that above changes, he may also be signs and the symptoms of the unknown disease. Unknown disease के भी symptoms उस पे देखने को मिल सकते हैं। He may also experience like a stretch, headache, stomach pain, etc., indicating some of the mental sickness. ये indicate करता है। या फिर आप फिजिशियंस किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कैसे डिटेक्ट करता है। इफ अबव इंडिविजुअल गोज टू द doctor would discuss the symptoms according to based on he would suggest the properly cure. The doctor may also perform some of the diagnosis to the particular disease. तो उसमें दो तरीके के डिजीज आते हैं, एक आता है एक्यूट डिजीज और दूसरा आता है क्रॉनिक डिजीज। एक को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज और दूसरे को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। तो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। तो डिजीज दैट अटैक सडनली एंड लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड टाइम्स आर नॉन एज एक्यूट डिजीज। जो डिजीज एकदम सडनली हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं और काफी शॉर्ट पीरियड टाइम तक हमारे बॉडी पे रहते हैं, उसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। जबकि जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, डिजीज दैट मे बी लास्ट वेरी लॉन्ग एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम आर नॉन एज अ क्रॉनिक डिजीज। धीरे धीरे काफी लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी के साथ स्टिक किए हुए रहते हैं, इवन टू द लाइफ टाइम, उसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। एक्यूट डिजीज में जैसे कफ है, कोल्ड है, टाइफाइड है, ये एक्यूट डिजीज आते हैं। जबकि क्रॉनिक डिजीज के अंदर टीबी है, कैंसर है, डायबिटीज है, ये आपके क्रॉनिक डिजीज आते हैं। So the defect of acute disease are seen only a very short period of time and do not cause any kind of major defects on your body. जबकि chronic disease जो होते हैं, the effect of this type of disease are be very strong and having to the last of very long period, and also that can be cause the very major effect on the body. So इसमें जो chronic और acute disease का जो formations आता है कि कैसे आप compare कर सकते हो कि ये विक्टिम एक्यूट डिसीज का है या क्रॉनिक डिसीज का, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के कुछ सफिशिएंट दैट शुड बी हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन बॉडी। हमारे बॉडी पे
एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के कुछ अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक्यूट डिसीज के जैसे कॉफ है, कोल्ड है, ये सारे जो इफेक्ट होते हैं दैट अटैक द बॉडी वेरी क्विकली, काफी जल्दी हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो लीव द बॉडी इन अ शॉर्ट टाइम में उसको लीव करते हैं। जबकि जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी के साथ स्टिक करके रखते हैं। क्रॉनिक डिसीज जो होते हैं उस पेशेंट्स को वीक करते हैं, इनएक्टिव करते हैं, सिक वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी अ लाइफ लॉन्ग। इफेक्ट जो होता है जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लोअर इम्यूनिटी है, ये सारे जो होते हैं ये क्रॉनिक डिसीज के फॉर्मेशंस में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? व्हाट आर द मेजर स्टेप्स दैट वी हैव टू बी टेकन केयर टू द पर्सन्स इफ इट हैपन टू इन्फेक्टेड दिस टाइप। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट परफॉर्म रूट केस, जिसको हम कह सकते हैं ना मल्टी लेवल एनालिसिस टू द डिजीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द जनरल पब्लिक हेल्थ। हमें क्या करना चाहिए? सो जनरल टेंडेंसी फॉर क्योरिंग अ डिजीज टू एनालाइज डिजीज थ्रू इट्स सिम्टम्स एंड द टेस्ट एंड देन क्योर इट। हमें किसी भी तरह का अगर सिम्टम्स आता है तो उसके लिए प्रॉपरली उसके डायग्नोसिस करें, उसके सिम्टम्स को देखें, उसके टेस्ट करें, उसके बाद उसके हम केयर की तरफ मूव करेंगे। दिस मेथड ऑफ course generally necessary but not being sufficient because many a times going to the root level of the disease becomes a quite important for the maintaining of maybe a general well-being into the societies. So it should be a quite important like उसके लिए कुछ examples के साथ आप समझते हैं कि suppose child is suffering through a loose motion, ऐसे का example लेते हैं। तो प्राइमरी लेवल कॉज क्या होना चाहिए? तो मेन कॉज होना चाहिए कि चाइल्ड जो इन्फेक्टेड हुआ है वायरस से, दैट मे बी अ चाइल्ड कुड बी इन्फेक्टेड विद द वायरस। दूसरा जो सेकंड लेवल केस जो होता है उसमें कि द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दैट में अराइज कि वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, वायरस कहाँ से आया? द वायरस हैव कम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, या फिर मेनी चिल्ड्रन मे बी हैव टू ड्रिंक सेम वाटर, वो सब भी हो सकता है। तीसरा लेवल आता है कि जो लोकेलिटी है चाइल्ड का, इट शुड बी लिव्स इनटू डर्टी और मे बी इन दैट काइंड ऑफ द एरियाज वेयर इज द प्रॉपरली क्लीन वाटर, दी डिड नॉट गेट द क्लीन वाटर। तो ऐसे जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ऐसे प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग टू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके लिए हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सो दस इन ऑर्डर टू मेंटेन अ जनरल पब्लिक हेल्थ, एक जनरल पब्लिक हेल्थ अगर मेंटेन करना है, द रूट कॉज दैट शुड बी एनालाइज्ड एंड एफर्ट शुड बी मेक टू सॉल्व देम। तो इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, जो आपको 13.2.5 के अंदर दिया हुआ है। दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इन्फेक्शियस जो होता है उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं। इन्फेक्शियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज। So this type of disease are generally caused by the pathogenic organisms. ऐसे जो डिजीज होते हैं, जो पैथोजेनिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके थ्रू कॉज होता है। पैथोजेनिक्स ऑर्गेनिज्म जैसे आपके वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, वॉर्म्स है, या फिर नेमाटोडाज है, ये फंगस है, ये सब जो होते हैं वो कंसिडर किया जाता है पैथोजेनिक्स ऑर्गेनिजम्स में। दिस टाइप ऑफ डिजीज विल अटैक एंड स्प्रेड अमॉन्ग्स द ह्यूमंस थ्रू द वे ऑफ एयर, वाटर एंड फूड, इसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। Also, this disease that spread from the disease persons, infected person to the healthy person. एक infected person से healthy person के अंदर जा सकते हैं, like कॉलरा है, टीबी है, कोल्ड है, ये सब जो है वो infectious disease में आते हैं। दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं। इस तरह के डिजीज आते हैं that not be caused by the pathogenic organisms but by the several other factors such as like genetic automobilations, excessive weight, lack of exercise, stress, etc. इससे हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। Other reasons may be like some of the injury during the activities, wrong eating habits that also call as the effects, like it create the effect of diabetes, blood pressure, cancer, arthritis, ये सब बीमारी जो होती है वो इसके थ्रू होती है, that is called non-infectious। तो इसके अंदर जो हम देखते हैं कि why is it important to classify the infectious agents to the cause of disease? क्यों हम infectious agents को classify करते हैं, जिसको हम देते हैं cause of disease, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, that is called cause of disease। So infectious disease में जो cause of disease के बारे में आता है, इसमें आपको दिया है कि for curing a disease it is important
टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कॉज द डिजीज। कौन से ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो इस तरह के डिजीज को कॉज यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, वो हमें समझना जरूरी है। सो द वे ऑल द 5 fingers in a hand are different, so infectious agents are also be different and have the different characteristics, different tendency, and treatment is different according to the particular pathogens। सबके अलग अलग होते हैं। So the exist of the various type of the infectious bacteria, virus, protozoan, fungus, they are generally a pathogenic organisms। The medicines that affect the bacteria of only one type not affect the bacteria to another type। अगर बैक्टीरिया के थ्रू भी अगर वो बॉडी के अंदर जर्म्स आ रहा है तो जो वैक्सीन आप बनाते हैं वो वैक्सीन केवल उसी तरह के बैक्टीरिया के इफेक्ट के लिए है। अगर किसी दूसरे बैक्टीरिया के इफेक्ट से आपके बॉडी के अंदर वो जर्म्स आए हैं तो आप उस मेडिसिन का यूज करके उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी प्रोटेक्ट थ्रू दैट। सो ऑन द अदर हैंड कि वायरस इज आल्सो बी अनदर मेथड टू अटैकिंग द बॉडी ऑन द गिवन स्ट्रक्चर्स। वायरस जो है वो भी हमारे बॉडी पे ऐसे इफेक्टेड करता है। So many infectious bacteria entering into the human body also make the cell wall around themselves to protect themselves। An antibiotic that is called as a penicillin antibiotics का यूज करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो उस तरह के अपने वॉल वहाँ पे क्रिएट ना कर सके और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को वीक ना कर सके। सो एज ए रिजल्ट जो हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। So on the other hand, वायरस also follow another method to attacking the body। वायरस हमारे बॉडी में दूसरे मेथड से अटैक करता है। एंड जो एंटीबायोटिक अगर आप उसको देते हैं तो विल नॉट बी इफेक्ट टू द वायरस, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं जो वो बैक्टीरिया के लिए है तो वो वायरस पे इफेक्टेड नहीं करेगा। तो उसके लिए प्रॉपरली डायग्नोसिस करके कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस का इफेक्ट है उसके हिसाब से मेडिसिन को दे सकते हैं। तो देखिए कौन से एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। एयर के थ्रू देखिए व्हेन एन इन्फेक्टेड मैन या इन्फेक्टेड पर्सन दैट स्नीज और कफ, अगर उसको स्नीजिंग और कफ आता है तो माइक्रोब्स फ्रॉम हिज बॉडी, उसके बॉडी में से जो माइक्रोब्स जनरेटेड होते हैं दैट रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड स्प्रेड टू द पीपल अराउंड हिम, तो उसके लिए भी वो इन्फेक्टेड होते हैं। लाइक न्यूमोनिया है, कोल्ड है, कफ है, अभी ये कोरोना है, ये सब इसके वजह से ही होता है, उसके इन्फेक्शंस की वजह से दूसरे के अंदर जाता है। तो ये एयर के वाटर के स्प्रेड से कैसे होता है देखिए, इफ द एक्सक्रीट्रा ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉलेरा, कॉलेरा से अगर सफर्ड है और वो अगर वो वाटर के अंदर उसका वो सब्सटेंसेस मिक्स होता है लाइक लेट से रिवर और स्ट्रीम्स के अंदर, तो सच काइंड ऑफ वाटर दैट कंज्यूम बाय एनी हेल्दी पर्सन इट आल्सो बी गेट बी इन्फेक्टेड, उसको भी इन्फेक्टेड हो सकता है। फूड के अंदर मान लीजिए कंजप्शन ऑफ फूड कर रहे हैं वो अनहाइजीनिक है, ओपन है या ऐसी जगह पे है तो भी वो फूड आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। फिजिकल कॉन्टेक्ट, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से एड्स है, एक ऐसी बीमारी है जो फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से होती है। एनिमल्स के थ्रू भी होता है, जैसे मलेरिया है, रेबीज है, ये सब जो होता है ये एनिमल्स के कांटेक्ट में आने के बाद से होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जो डिजीज है वो ह्यूमन बॉडीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है और अलग अलग जो एजेंट्स हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के अंदर देखिए कि जो बॉडी के अंदर जो एंट्री होती है इस तरह के सोर्स जो है माइक्रोब्स की, एक तो नोज के थ्रू हो सकता है, माउथ के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू हो सकता है, बाइट्स ऑफ बॉडी, मॉस्किटोज के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर उससे वायरस जा सकते हैं। ओपन सिस्टम जो है, जैसे आप देखिए नोज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है लंग्स पे भी इफेक्टेड करता है, जिससे टीबी उसका इफेक्टेड है लंग्स पे, या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन माउथ के थ्रू जाते हो तो जो बैक्टीरिया है वो टाइफॉइड्स को क्लियर करता है, जो वायरस इज ऑल्सो गॉट मे बी लीवर को इफेक्ट करेगा और जॉन्डिस की बीमारी वहाँ पे जनरेटेड होती है। ऐसे अलग अलग तरीके के कॉज जो है वहाँ पे जनरेटेड होते हैं। तो उसमें हमें डिस्कशन करना है अलग अलग तरीके से। एक मलेरिया है, मलेरिया के बारे में आपको समझाऊं कि मलेरिया का जो कॉज है, मलेरिया का कॉज जो है फीमेल एमोफिलिस जो मॉस्किटोज है, while the female Haemophilus mosquitoes on the beating release a protozoans parasites जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, that should be into the human and it's cause to malaria, मलेरिया को कॉज करता है। मलेरिया जो है अगर आपके बॉडी के अंदर है तब वो मस्कुलर पेन को जनरेट करेगा और फीवर जनरेट होगा, टर्जिटी इन लीवर इन स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे जनरेट होगा। मलेरिया अटैक द पेशेंट्स फॉर द 6 to 10 आवर्स के बाद उसका ऊपर सिम्टम्स जनरेटेड होता है। उसमें दो तरीके के स्टेजेस आते हैं, कोल्डर स्टेज और हॉटर स्टेज। कोल्डर स्टेज के अंदर क्या होगा, पेशेंट्स दैट फील एक्सट्रीमली वेरी कोल्ड एंड हैंस फीवर्स। जबकि हॉटर स्टेज जो आता है
उसके अंदर उसको हाई फीवर होता है, उसके हार्ट बीट्स काफ़ी फास्टर हो जाते हैं। तो एक और आता है जिसको हम पर्सिपिरेशन स्टेज कहते हैं। पर्सिपिरेशन स्टेज, पर्सिपिरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स दैट स्टार्ट गेटिंग टू बी क्योर्ड, he generally prescribes a lot of food and the start to be temperature become very normal. Malaria is one of the fatal disease and every year approximate 2 lakhs people that can be die through the form of malaria. मलेरिया की वजह से उनकी वो मौत हो जाती है, every 2 years पे वो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के अंदर है। दूसरा एक आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में समझते हैं। जॉन्डिस जो डिजीज है इस एक वायरस के थ्रू होता है जिसको हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं, और ये जनरली फूड और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। इसके अगर सिम्टम्स देखें जैसे फीवर है, हेडेक है, मस्कुलर पेन है, वीकनेस है, जॉइंट्स में पेन होना है, येलो कलर का यूरिन जनरेट होना है, वाइट कलर के स्टूल्स निकलने हैं, लॉस्ट ऑफ एपिलेट्स है, ये सारे जो फॉर्मेशंस होते हैं वो जॉन्डिस के इफेक्टेड होते हैं। लीवर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड ऑर्गन इन योर बॉडी जब जॉन्डिस होता है तो। कॉलरा भी वैसा ही है। कॉलरा जो है वो फैटल और इन्फेक्शियस डिसीज है जो वाटर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है। वाइब्रो कॉलरा नाम का बैक्टीरिया इसको इफेक्टेड करता है। अनक्लीन वाटर का यूज करने से ये होता है। तो यह जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर मस्कल और पेन वहाँ पे स्टार्ट होने लगता है, एपिथेलियल सेल्स को भी इफेक्टेड करता है। ऐसे अलग अलग तरीके के जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। उसी तरह अगर एड्स के बारे में हम डिस्कशन करें, एड्स जो है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है लाइक और इम्यूनिटी सिस्टम में जिसे हम देखते हैं कि HIV का जो वायरस है लाइक ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का जो फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो इसमें जो इफेक्ट्स जो जनरेटेड होती है HIV के टर्म्स के हिसाब से, तो जो हमारा इम्यूनल सिस्टम है दैट जनरली हैव टू फाइट अगेंस्ट द ऑल द माइक्रोब्स विच इज एंटर इन योर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो वायरस है जैसे एड्स का, दैट टारगेट जनरली द इम्यूनिटी सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट इट वर्किंग। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पे ही वो टारगेट करता है और उसको वर्क करने से स्टॉप करता है। सो अंडर दिस सर्कमस्टांसिस द पेशेंट्स ऑफ एड्स which cannot be fight against even a small disease that could be implementation in any healthy person। एक स्पेसिफिक हेल्दी पर्सन पे भी अगर किसी भी तरह का इफेक्ट वहाँ पे जनरेटेड होता है, इट कैन नॉट बी वर्क ऑन इट्स इम्यूनिटी सिस्टम, उस पर वर्क नहीं करेगा। सो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि ये जो वायरस जनरेटेड होता है लाइक ह्यूमन इम्यूनो वायरस दैट जनरली इम्प्लीमेंट्स टू डायरेक्टली टू द इम्यूनिटी सिस्टम, और उससे जो हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लॉस होता है, और वो जो प्रॉपरली जो वर्किंग सिस्टम्स होती है वो डिवाइड हो जाती है। लाइक पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द एड्स, अगर एक कॉमन कोल्ड भी उसको होता है द विल बिकम्स अ न्यूमोनिया, उसके लिए न्यूमोनिया हो जाता है। स्मॉल इन्फेक्शन अगर इंटेस्टाइन के अंदर है तो दैट लेट बी डायरिया, वो जनरेटेड हो जाता है। सो एड्स इज अ स्मॉल एंड इजिली कॉजेबल डिसीज ऑल्सो बिकम अ वेरी फैटल डिसीज, क्योंकि अभी तक इसकी मेडिसिन नहीं है। तो ये एड्स के बारे में होता है। उसी तरह मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ऐसे बहुत तरीके के जो इफेक्ट है वो बैक्टीरियाज, वायरस, इनके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते रहते हैं। अलग अलग तरीके के इफेक्ट जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सो उसके लिए अगर आप देखें तो जो प्रॉपरली ये इन्फेक्शियस जो है एयर के मीडियम से जा रहे हैं या वाटर के मीडियम से जा रहे हैं, एनिमल के मीडियम से जा रहे हैं, या फूड के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, ऐसे अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। सो जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल मेडिसिन, वो कैसे डिफिकल्ट है, एक चीज हमें समझना है। तो वायरसेस हैव अ वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स फॉर देयर ओन, अनलाइक अ बैक्टीरिया। वायरस के अंदर बहुत ही कम ऐसे बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं अपने खुद के, जैसे बैक्टीरिया के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो एज अ रिजल्ट व्हेन वायरस एंटर इन अवर सेल, हमारे सेल के अंदर जैसे वायरस एंटर होता है, दे यूज अवर सेलुलर मैकेनिज्म्स, जो हमारा सेलुलर मैकेनिज्म सिस्टम होता है फॉर देयर सर्वाइवल एंड द अदर लाइफ प्रोसेस। तो वायरस वो सेलुलर मैकेनिज्म्स को अटैक करता है जिसमें वो अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकता है और बाकी के जो एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सकता है। इट मीन्स कि जो वायरस डू नॉट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली बट ऑल्सो बी यूज सम सेलुलर प्रोसेस।
अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता है, बट सेलुलर प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट करता है। तो हेंस की जो एंटीवायरल मेडिसिन शुड बी एबल टू टारगेट ओनली वायरस सच अ वे दैट एक्टिविटी ऑफ द वायरस शुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड, बट विदाउट अफेक्टिंग आवर बॉडी ऑफ सेल्स ऑफ आवर सेलुलर प्रोसेस। तो ये उसका काम होता है। जबकि जो बैक्टीरिया अगर सेवरल एक्टिविटीज अगर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है तो दैट टारगेटिंग देम वेरी इजीली। तो इसके वजह से जो एंटीवायरल मेडिसिन है कंपेयरिंग टू द एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन वो ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो इसमें अलग अलग तरीके के डिसीज जो है वो प्रिवेंटेड हो सकते हैं, जिससे अलग अलग फॉर्म के डिजीज जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसमें एयरबॉर्न डिजीज जिसको कह सकते हैं, तो वी जनरली कैन बी प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिसीज बाय अवॉइडिंग द प्लेसेस दैट हैवीली ओवरक्राउडेड। वैसी जगह पे जाना हम रोकेंगे। यूज अ मास्क while we are visiting the hospital or we are being moving on some of the crowded places or meeting any infectious persons also have to be stopped to that airborne disease. Waterborne disease अगर water के through हो रहा है तो water which will be well treated and had to be safe to be drinking. फिर vector-borne disease जो होता है like prevent of breeding of microbes, उसको आप prevent कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे disease occurring to the पुअर इम्यूनिटी के थ्रू, जैसे अलग अलग तरीके के, जैसे बैलेंस डाइट अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, तो भी अलग अलग तरीके के डिजीज आपके बॉडी के अंदर जनरेटेड होते हैं। तो इसी में लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? देखिए, तो वैक्सीन जैसे अभी हम न्यूज़ में देखते ही रहते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है, कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन है क्या, वो सबसे पहले हमें समझना है। वैक्सीनेशन इज अ मेथड to providing a people with certain medicines that can prevent the occurrence of the specific disease. जो स्पेसिफिक डिसीज का जो अकरेंस हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मेथड टू प्रोवाइडिंग द पीपल ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। तो सेवरल वैक्सीन्स आर प्रोवाइडेड टू द न्यू बॉर्न डिसीज फॉर द लाइफ टू टाइम सेफ फॉर द डिजीज may occur into the future। तो जो वैक्सीनेशन जो दी जाती है ताकि जो टाइम टू टाइम जो नए डिजीज जनरेट हो रहे हैं उससे वो फ्यूचर के अंदर अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो वैक्सीनेशंस आर बी अवेलेबल फॉर्म लाइक टिटनेस की वैक्सीनेशन है, डायफ्थीरिया की वैक्सीनेशन है, मैस्लिसिस की है, पोलियो की है, रेबीज की, टाइफाइड की है, जॉन्डिस की है, निमोनिया की है, अभी कोरोना की भी आ गई है। हर एक तरह के वैक्सीन जो है अभी अवेलेबिलिटी होती है। तो ये अलग अलग तरीके के जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है वो हमारे बॉडी की इम्यूनल सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए और इस तरह के डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी को दी जाती है। ज़्यादातर इम्यूनिटी सिस्टम जो स्मॉल चाइल्ड्स की होती है वो वीक होती है, इसीलिए उनको टाइम टू टाइम ये दिया जाता है। मान लीजिए मलेरिया है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन का एक टाइप है। वो कैसे कॉज होता है? बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मस्किटोस, और हमारा ब्लड के अंदर एंटर होता है, ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, उससे हेडेक, मस्कुलर पेन, ये सारे इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जो इफेक्ट्स है हमारे बॉडी पे, दैट शुड बी जनरेटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द इफेक्ट्स। तो ये जो था वो पूरा चैप्टर था, दैट शुड बी व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे डिजीज स्प्रेड आउट होते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन क्या है, ये सारे टॉपिक मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया है, जो चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, इसके क्वेश्चंस जो दिए हैं उसके आंसर्स अपने ऑन लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करें। सो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्टेड करता हूँ कि जितना हो सके उतना अपनी फ्री टाइम का यूज़ करें अपने स्टडीज़ में, और भी डिजिटल मीडियम्स ऑफ लर्निंग का यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कीजिए, और भी मेथड्स के थ्रू आप इस तरह के आंसर्स लिखिए। मिलेंगे कल दोबारा डिस्कसिंग अबाउट द न्यू चैप्टर ऑफ द सिलेबस। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर and bye।